Okay, good evening everyone. How are you all? Good evening, sir. We are fine, sir. And what about you? I'm also fine, thank you. But in today's session, we are going to start a new chapter that is the hunt. So let us start. So in this class, we have to start the chapter the hunt, the chapter number 11. This is a fiction story. We can say that this is a story written by the author Anna Sewell. So first of all, we should talk about the author. Anna Sewell was born on 30th March in 1820 in Great Yarmouth, Norfolk in England. जो अन्ना स्वेल थी उनका जन्म 30 मार्च को 1820 में हुआ था इंग्लैंड के एक पर्टिकुलर शहर में. Having suffered an injury at the young age of 14, जब वो 14 साल की थी तभी उनको एक इंजरी हुई, उनको एक चोट लगी जिससे क्या हुआ, she could no longer use her legs and had to depend on crutches, जिसकी वजह से वो अपने पैर का यूज नहीं कर पाई और उनको डिपेंडेंट रहना पड़ा बैसाखी के ऊपर. crutches में होता है बैसाखी. She dependent mainly on horse-drawn carriages of the outdoor movement. वो अपने आउटडोर मूवमेंट के लिए यानी बाहर कहीं इधर से यहाँ से कहीं जाने के लिए फिलहाल वो मेनली हॉर्स जो घोड़े द्वारा खींचा जाने वाला जो कैरेज होता है यानी घोड़ा गाड़ी होता है उस पर डिपेंडेंट रहती थी. which contributed to her love for horses and concern about cruelty to animals, जो कि हॉर्स के प्रति उनका जो एक प्रेम था वो कहीं ना कहीं बढ़ाया और जो हॉर्स से रिलेटेड जो कंसर्न थी, जो उनकी चिंताएं थी, किसकी चिंताएं, अबाउट क्रूएलिटी टू द एनिमल्स, जो जानवरों के साथ जो क्रूएल चीजें होती थी उसको लेकर के जो उनकी चिंताएं थी वो ज्यादा बढ़ी. शी इज वेल नोन फॉर हर नॉवेल ब्लैक ब्यूटी. जो ये ऑथर एना स्वेल थी बहुत ही ज्यादा जाने जाती थी, विख्यात थी और जानी जाती हैं फॉर हर नॉवेल, अपनी नॉवेल ब्लैक ब्यूटी के लिए. तो ब्लैक ब्यूटी वाज रिटन बाय एना स्वेल which is the her only published work, जो कि उनका एकमात्र published work है. और The Hunt is a second, I think second chapter या second part ही है, second story है Black Beauty का. It is not the confirmed that whether it is the second or not, but the story The Hunt has been taken from the Black Beauty itself. तो Black Beauty उनका एक नॉवेल है जिसके लिए वो काफी ज्यादा जानी जाती रही हैं. And that is which is her only published work, जो कि उनका एकमात्र पब्लिश किया हुआ वर्क है. हर इल हेल्थ, जो उनकी बीमार जो स्वास्थ्य था, जो प्रिवेंटेड हर फ्रॉम एक्सप्लोरिंग हर लिटरेरी टैलेंट टू द फुलेस्ट. प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, उनको रोका, क्या रोका, फ्रॉम एक्सप्लोरिंग हर लिटरेरी, जो उनकी जो स्किल्स थी, जो उनका टैलेंट था लिटरेचर के पार्ट में, उसको एक्सप्लोर करने के लिए प्रिवेंट किया. उनका जो इल हेल्थ था, उनका जो बीमार शरीर था, यानी जो अस्वस्थ होने के कारण वो इस अपने जो उनकी नॉलेज थी, जो उनका टैलेंट था, वो फुल ऑन पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर पाने के लिए उनका जो बीमारी थी उसने रोका, यानी पूरी तरीके से ये नहीं कुछ कर पाई. दैट इज ऑल अबाउट द ऑथर. ओके, is there any Yes, sir. concern, is there any query? Okay, No, now sir. let us move ahead on the get set module में बेटा there are some pictures. Can you look into the picture and tell me that what is going on? There are some pictures of sports and recreational activities that engage animals. Which of these do you think are harmful to the animals involved? How do you know any other such sport? इसमें से कई सारे आपको पिक्चर्स हैं. That is nothing but a kind of sport. गौरव तिवारी अपना माइक बंद करिए. जब बोलने की बारी रहे तो माइक ऑन करें, नहीं तो फिर खटर पटर बंद किया करिए. Here are some pictures of sports. कुछ ऐसे स्पोर्ट्स के पिक्चर्स हैं ये, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज है where some animals are involved. So there are question, which of these do you think are harmful? इसमें से कौन सा harmful है? Where the animals are involved, जहाँ पे animals involved हैं. How, कैसे? Do you know any other such sport? क्या आप इस तरीके का ऐसा कोई और भी स्पोर्ट जानते हैं जहाँ पे ऐसा होता हो या हार्मफुल हो एनिमल्स के लिए? So I need answer for this question. Do you know any other such sport?
where such kind of animals are involved that may be harmful. Muskan, Gaurav, Abhishek, Akriti, Abhishek. Sir, horse racing, Horse horse riding. horse riding. हॉर्स राइडिंग क्या हार्मफुल हो सकता है? कैन यू थिंक ऑफ सम गेम्स दैट आर नॉट हार्मफुल टू द एनिमल्स इन्वॉल्व? क्या ऐसे भी गेम के बारे में आप सोच सकते हैं जो कि एनिमल्स इन्वॉल्व हो और हार्मफुल ना हो? मुझे लगता है हॉर्स राइडिंग शायद वही है, क्योंकि हॉर्स तो दौड़ते होंगे कि हार्मफुल है या हार्मलेस है? Yes, वो तो वैसे भी harmless, sir. Yes, sir. So I need the game that where I need the name of the games where animals are involved and that is harmful. कई बार होता है शिकार करने लोग जाते हैं, तो that is also there Yes, also sir. animals are involved. That means वहां पे तो एक तरीके से हार्मफुल होगा ना? Yes, sir. ठीक इसी Yes, तरीके sir. से इन्हीं थीम पे ही बेस्ड कोई एक स्टोरी है, और इसमें एक हॉर्स है जो मतलब एक तरीके से यहाँ पे जो ऑथर हैं, जो राइटर है, वो इमेजिन करके एक हॉर्स की लैंग्वेज में ये पूरी स्टोरी लिखा है. क्या लिखा है? लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट वन ऑफ द मोस्ट क्रूअल फॉर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड द कॉस्ट ह्यूमन बीइंग्स समटाइम्स पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट. क्या लिखा है? लेट अस रीड अ स्टोरी. चलिए एक स्टोरी पढ़ते हैं. किसके बारे में? अबाउट वन ऑफ द मोस्ट क्रूअल फॉर्म्स. एक ऐसे बहुत मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा क्रूअल फॉर्म्स, यानी बहुत ज्यादा क्रूअल मीन्स समझते हैं? क्रूअल मीन्स क्या होगा? इसकी हिंदी क्या बोल सकते हैं लोग? निर्दयी. बहुत ही ज्यादा खतरनाक, निर्दयी, यानी बहुत ही निर्दयी वाले फॉर्म में, निर्दयी वाले तरीके का ऑफ स्पोर्ट्स. एंड द कॉस्ट ह्यूमन बीइंग्स समटाइम्स, और कई बार ये ह्यूमन बीइंग्स को यानी जो सजीव हैं उनको कॉस्ट भी करता है, उनको पे भी करना पड़ता है, उनको नुकसान भी करता है. जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, बस एक एंटरटेनमेंट के लिए, बस केवल एंटरटेनमेंट के लिए ही, मतलब कहीं ना कहीं किसी ह्यूमन बीइंग को पे करना पड़ता है, उसको उसका नुकसान झेलना पड़ता है. तो ऐसी ही एक स्टोरी पढ़ेंगे यहाँ पे. Before I was 2 years old, a circumstance happened which I have never forgotten. यहाँ पे एक हॉर्स है, वो उसकी तरफ से बोला जा रहा है. Before I was 2 years old, जब मैं 2 साल का था, उसके पहले एक circumstance happened which I have never forgotten. Circumstance मतलब एक परिस्थिति ऐसी हुई, यानी एक ऐसी स्थिति आई which I have never forgotten, जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ, जिसे मैं नहीं भूल पाया हूँ. It was early in the spring. ये उस समय बस वही वसंत ऋतु की शुरुआत थी. There had been a little frost in the night. There had been a little frost in the night. उस समय नाइट में थोड़ी सी ठंड थी, एक तरीके से कह सकते हैं पाला पड़ रहा हुआ था. फ्रॉस्ट मीन्स होता है ठंड या पाला पड़ना. पाला बोल दीजिए ज्यादा, पाला पड़ा हुआ था इन द नाइट, रात के समय. एंड द लाइट मिस्ट स्टिल हंग ओवर द वुड्स एंड मेडोज. एंड द लाइट मिस्ट मतलब होता है धुंध. जो धुंध है वो स्टिल हंग था, पड़ा हुआ था, टंगा हुआ था ओवर द वुड्स एंड मेडोज, लकड़ियों पे, घास के मैदानों पे. अभी भी वहां पे उसकी बूंदें यानी हंग थी, पड़ी हुई थी. I and the other colts were feeding at the lower part of the field. I and other colts, मैं और जो other colts थे, colts कहते हैं young horses, young men horses, यानी जो घोड़े के बच्चों को, यानी मैं और जो और other colts थे वे फीड कर रहे थे, खा रहे थे at the lower part of the field, वो फील्ड के लोअर पार्ट में यानी निचले हिस्से में. When we heard, तभी हमने सुना, क्या सुना? Quite in the distance, थोड़ा दूर से ही, what sounded like the cry of dogs, यानी डॉग्स के क्राई करने के, चिल्लाने की आवाज को सुना. The oldest of the colts raised his head. हम में से जो ओल्डेस्ट कोल्ट था, यानी जो सबसे ज्यादा अनुभवी था, जो ओल्ड था, यंग मैन हॉर्स था, उसने अपने सर को, अपने हेड को रेज किया, उठाया. एंड pricked his ears. pricked मतलब एक तरीके से ध्यान से सुनना.
pricked his ears, अपने यानी paid attention, उसने attention दिया, ध्यान से सुना, and cantered off. Cantered off means क्या होता है? A type of movement, तुरंत ही भागना, एक तरीके से सरपट तो नहीं दौड़ना, लेकिन एक तरीके से भागा, and followed by the rest of us, और हम लोगों द्वारा पीछा भी किया गया, हम लोग भी साथ में उसके पीछे 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 भागे, to the upper part of the field, जो फील्ड का अपर पार्ट था वहां पे भागे, where we could look over the hedge and see several fields beyond, जहां पे हम लोग देख सकते थे, यानी over the hedge, hedge means क्या कह सकते हैं, a fence made of shrubs और bushes, जो shrubs यानी झाड़ियों और bushes यानी झाड़ियों से जो बना हुआ फेंस था, यानी चार दीवारी थी। फेंस समझते हैं क्या होता है? कई बार हम लोग खेतों के चारों तरफ Yes, सांड sir. या जो और भी एनिमल्स हैं, कह सकते हैं, जो छुटे हुए एनिमल्स हैं, वो हमारे फसलों को नुकसान ना पहुंचे, तो हम लोग क्या करते हैं? फेंसिंग करते हैं अभी गांव में, अभी इस समय Yes, sir. कई लोग तार से Yes, फेंसिंग sir. करते हैं, कई लोग रस्सियों से फेंसिंग करते हैं। तो वहां पे जब ऊपरी पार्ट पे जाते हैं तो दे वेयर दे कुड लुक, वे जो ये जो घोड़ा बता रहा है कि हम लोग देख सकते थे, ओवर द हेज एंड सी सेवरल फील्ड्स बियॉन्ड, यानी बहुत सारे फील्ड को देख सकते थे, जो फेंसिंग थी उसको देख सकते थे। और वहीं माई मदर एंड ओल्ड राइडिंग हॉर्स ऑफ आवर मास्टर्स वर ऑल्सो स्टैंडिंग नियर, जो मेरी माँ थी और जो राइडिंग हॉर्स था मास्टर का, जो हमारे मास्टर थे, जो यानी जो ओनर थे, उनका जो राइडिंग हॉर्स था जिससे वो राइड करते थे, वो और मेरी माँ साथ मेरे पास में ही खड़े हुए थे, एंड सीम टू नो ऑल अबाउट इट, और ये सारी चीजें देख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो जानते थे इसके बारे में। दे हैव फाउंड अ हेयर, और तभी उसमें से उनकी माँ बोलती है दे हैव फाउंड अ हेयर, उनको एक हेयर मिल चुका है। हेयर क्या होता है समझ में आ रहा है? A very small animal, and if they comes this way we shall see the hunt, और वे अगर इधर आते हैं तो we shall see the hunt, तो शायद हम लोग एक शिकार देखें। यानी they have found a hare, एक्चुअल में वो पीछा जो कर रहे थे, ये शोर जो आ रहा था, अचानक ये इतनी भीड़ आई, क्या था? they have found a hare, उनको एक हेयर मिल गया है, और वे अगर इधर आते हैं तो शायद हम लोग एक शिकार देखें। देखते हैं क्या होता है फिर। And soon the dogs were all tearing down the fields of young wheat next to ours, और जल्द ही जो डॉग्स थे, जो शिकारी कुत्ते थे, वो क्या किए? वर टीयरिंग डाउन द फील्ड्स ऑफ यंग वीट, जो यंग वीट था यानी जो अभी फील्ड था उसमें जो पौधे थे उसको एक तरीके से खराब करते हुए हमारी तरफ आ रहे थे। I never heard such a noise as they made. I never heard, मैंने कभी नहीं सुना था, such a noise as they made, जिस तरह की वो आवाज बना रहे थे वैसा हमने कभी भी नहीं सुना था। They did not bark, वे बार्क नहीं कर रहे थे, वे भौंक नहीं रहे थे, nor howl, ना ही वो चीख रहे थे, nor whine, ना ही वो कराह रहे थे, but kept on a yo at the top of their voice, वो अपने टॉप ऑफ द वॉइस यानी बहुत तेजी से वो यो करके आवाज निकाल रहे थे। After them came a number of men on horseback, और उनके बाद क्या हुआ? A number of men, बहुत सारे आदमी भी आए, कई सारे आदमी भी आए उनके बाद। On a horseback, यानी एक horseback पे यानी घोड़े पे कुछ आदमी भी आए, घोड़े पे बैठ के आए। Some of them in green coats, उनमें से कुछ ग्रीन कोट्स में थे। All galloping as fast they could, और वे इतना तेजी से, गैलोपिंग मतलब बहुत तेजी से सरपट दौड़ना, वे इतना तेजी से दौड़ रहे थे, घोड़े पे दौड़ रहे थे, घोड़े से दौड़ रहे थे जितना वे दौड़ सकते थे। The old horse snorted and looked, जो ओल्ड हॉर्स था उसने स्नॉटेड किया, स्नॉटेड मींस क्या होता है? मेक अ सडन लाउड नॉइज थ्रू द नोज, जो एक तरीके से बहुत लाउड एक सडन आवाज किया, बहुत तेजी से कराहा, चिल्लाया। एंड लुक्ड ईगरली आफ्टर देम, और उनकी तरफ देखा। एंड बी यंग कोल्स वांटेड टू द गॉलोपिंग विद देम, और हम जो यंग कोल्स थे यानी हम जो और भी हॉर्सेस थे, हम भी उनके साथ गैलोप यानी सर पर दौड़ना चाहते थे। बट दे सून डिसअपियर्ड इनटू द फील्ड्स, लेकिन वो उस फील्ड्स में बहुत ही जल्दी डिसअपियर्ड हो गए, यानी इधर उधर गायब हो गए।
इन द लोअर डाउन में, जो निचले हिस्से थे. हियर इट सीम्स एज इफ दे हैड कम टू द स्टैंड, द डॉग्स लेफ्ट ऑफ बार्किंग. ऐसा लग रहा था कि अगर वो इस तरह आकर के खड़े हो जाते तो शायद जो डॉग थे वो बार्क करना बंद कर दें. एंड रन अबाउट एवरी वे विद देयर नोसेस एंड द ग्राउंड. और उस ग्राउंड में जिधर भी अपने अपनी तरफ, अपने नोसेस की तरफ, यानी जिधर भी थे वो उधर ही की तरफ चले जाते हैं, तो दौड़े जाते. यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. दे हैव लॉस्ट द सेंस. ऐसे में वे सेंट को गायब भूल चुके हैं. गायब हो चुका सेंट मतलब यानी जो हेयर है उसकी महक, या उसको शायद Sir, wise, sir. सर वॉइस नहीं आ रही. वॉइस नहीं आ रही है, क्या कर सकते हैं इसके लिए? लेट मी चेक. So, wise आ रही है कुछ. ओके, नाउ एम आई ऑडिबल? Yes. यस. परहैप्स द हेयर विल गेट ऑफ. शायद जो हेयर था वो जा चुका था, वहां से भाग गया था. व्हाट हेयर आई सेड. मैंने पूछा कौन सा हेयर, क्या हेयर. एक्चुअल में जो ये हॉर्स है, जो स्टोरी बता रहा है, जो नरेट कर रहा है, उसको नहीं पता था कि व्हाट इज हेयर. Oh, I don't know what hair. Likely enough, it may be one of our own hairs out of the woods. Any hair they can find will do more the dogs and men to run after. Oh, I don't know what hair. मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है वो कौन सा hair. Likely enough, it may be one of our own hairs. मुझे लग रहा था कि जो हम लोगों में से जो था, उन्हीं में से कोई hair out of the woods. इन्हीं लकड़ियों में से कोई होगा hairs. Any hair they can find will do for the dogs. कोई भी hair अगर उनको मिल जाता तो शायद वो डॉग्स के साथ कुछ ना कुछ करते. एंड मैन टू रन आफ्टर, और आदमी तो उनकी तरफ दौड़ते. एंड बिफोर लॉन्ग द डॉग्स बिगेन देयर यो, लेकिन तभी जो डॉग्स थे फिर से वो शुरू हो गए यो करना. एंड बैक दे कम ऑल टुगेदर एट फुल स्पीड. और फिर वो तुरंत ही दोबारा दे केम ऑल टुगेदर, एक साथ हुआ आगे एट फुल स्पीड, पूरी स्पीड से आगे. मेकिंग स्ट्रेट फॉर आवर मीडोज एट द पार्ट वेयर द हाई बैंक एंड हेज ओवरहैंग द ब्रोक. और वे क्या किए? मेकिंग स्ट्रेट फॉर आवर मीडो, वो बिल्कुल सीधा हमारे मीडो की तरफ, यानी हमारा जो घास के मैदान था उसकी तरफ आए. एट द पार्ट वेयर, वे किस पार्ट पे आए? वेयर द हाई बैंक एंड हेज ओवरहैंग द ब्रुक. ब्रुक मींस क्या होता है? स्मॉल नैरो ऑफ वाटर, एक तरीके से स्ट्रीम ऑफ वाटर. और एक तरीके से जो स्ट्रीम ऑफ वाटर था उसके किनारे पे आ गए थे. नाउ वी शैल सी द हेयर. अब मैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे हेयर को देख सकते थे. सैड माई मदर, मेरी माता जी ने बोला. And just then a hare wild with fright rushed by and made for the woods. और तभी एक हेयर आता है. a hare, wild hare, एक जंगली हेयर यानी जंगली खरगोश आता है. with fright, डरा हुआ. rushed by and made for the woods, जो कि लकड़ियों के लिए बना हुआ होता है, आता है. on came the dogs, तभी जो डॉग्स हैं आते हैं. दे बर्स्ट ओवर द बैंक. वे क्या करते हैं? वे बर्स्ट मतलब एक तरीके से छलांग लगाना, कूदना. वो बैंक यानी जो रिवर था, जो ब्रुक था, उसके ऊपर से वो छलांग लगाते हैं. लीप द स्ट्रीम, जो स्ट्रीम है उसको कहीं ना कहीं क्रॉस भी कर ले जाते हैं. एंड केम डैशिंग अक्रॉस द फील्ड, फॉलोड द हंट्समैन. एंड केम डैशिंग अक्रॉस द फील्ड, वे एक तरीके से फील्ड को क्रॉस कर जाते हैं. एंड फॉलोड द हंट्समैन, और हंट्समैन जो थे यानी जो शिकारी थे, घोड़े पे जो आदमी मैन आए थे, उनके द्वारा पीछा हो रहा था. वो कितने थे? 6 or 8 मैन लिफ्ट देयर हॉर्सेस क्लीन ओवर. वो जो 6 से 8 आदमी थे वो भी कहीं ना कहीं क्लीन ओवर क्लोज अपॉन द डॉग्स. वो करीब जो कुत्ते थे उनके करीब आ गए. वो भी कहीं ना कहीं उस क्लीन कर गए, ऊपर छलांग लगा ले गए. द हेयर ट्राई टू गेट थ्रू द फेंस. जो हेयर था वो ट्राई किया, कोशिश किया, टू गेट थ्रू द फेंस, वो रास्ता बनाने के लिए, फेंस के थ्रू बाहर निकलने के लिए रास्ता देखने लगा, बनाने लगा. इट वॉज टू थिक, वो बहुत ही मोटा था. एंड शी टर्न शार्प राउंड टू मेक फॉर द रोड. ऐसे में वो शार्प टर्न लिया, एक तरीके से तुरंत ही उसने मुड़ा. और क्या करने के लिए? टू मेक फॉर द रोड, अपना एक रास्ता खोजने के लिए, रास्ता बनाने के लिए. बट इट वॉज टू लेट, लेकिन तब तक ये बहुत लेट हो चुका था. The dogs were upon her with their wild cries. और the dogs were upon her, जो dogs थे वे उनके ऊपर झपट्टा मार चुके थे. with their wild cries, फिर उनके जंगली मतलब
क्राइस के साथ यानी शोर के साथ उस पर झपट्टा मार चुके थे। वी हर्ड वन श्रिंक, हमने एक लास्ट चीख सुनी, एंड दैट वाज द एंड ऑफ हर, और वो लास्ट चीख क्या थी, उसका एक तरीके से अंत था। दैट वाज द एंड ऑफ हर, यानी उस जो हेयर था उसका कहीं ना कहीं अंत था, यानी वो जो डॉग थे उसको मार डालते हैं। वन ऑफ द हंट्समैन रोड अप एंड whipped off the dogs. One of the huntsman, एक हंट्समैन क्या करता है, आता है, rod up and whipped. ये rod up means क्या होता है, where I was doing this one. Okay, let me check that key, what is going on. Yes, चलिए इसमें नहीं है. Where I was reading, now we shall see the hair. अच्छा यहाँ पे हो गया था, sharp round the neck हो गया. One of the huntsmen rode up and whipped off the dogs. जो one of the huntsmen rode up means कह सकते हैं क्या होता है, is there anyone can guess? rode up मतलब ऊपर चढ़े एक तरीके से, उसके ऊपर आ गए. One of the huntsmen rode up and whipped off the dogs, और dogs को whipped off किया. whipped off means क्या होता है, एक तरीके से मारते हैं उनको भी. जब जो डॉग्स था उसको जब हेयर को झपट्टा मारते हैं और उसको खत्म कर देते हैं, उसकी लास्ट चीख सुनती है, तब तक जो और भी जो शिकारी हैं हंट्समैन वो आते हैं और उस मतलब जो डॉग है क्या जो शिकारी कुत्ते हैं उनको एक तरीके से ठोकर मारते हैं, उनको मतलब एक प्ले रहता है, उनको बेहतर करते हैं, शाबाशी देते हैं एक तरीके से. One of the huntsmen rode up, एक हंट्समैन ऊपर चढ़ता है and whipped off the dogs, और डॉग्स को whipped up करता है यानी मारता है. Who would soon have torn her to pieces, और वो क्या करता है, who would जो कि उस wear hair को क्या करते हैं, who would soon have torn her to pieces, जो hair था उसको कई सारे pieces कई सारे टुकड़ों में torn कर देते हैं, फाड़ देते हैं, यानी जब उसको मार चुके रहते हैं तो वो डॉग है कई सारे टुकड़ों में उसको फाड़ देते हैं. He held her up by the leg, torn and bleeding. वे उसको लेते हैं, hold का सेकेंड फॉर्म होता है held. He held her up, वे उसको ऊपर उठाते हैं, by the leg, torn and bleeding, जो torn हुआ था, जो पैर चीरा हुआ था उस पैर को पकड़ के ऊपर उठाते हैं जहां से ब्लीडिंग भी हो रही थी, खून भी बह रहा था. And all the gentlemen seemed not only unaffected but well pleased. और ऐसे में जो और भी जेंटलमैन थे यानी जो शिकारी थे, 6 से 8 आदमी आए थे हॉर्सबैक, वे दे सीम नॉट ओनली अनअफेक्टेड, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बट वेल प्लीज, बट वो बहुत ज्यादा खुशी लग रहे थे. एज फॉर मी, लेकिन मेरे लिए, वो घोड़ा जो कहता है, जो इस स्टोरी को नरेट कर रहा है, वो कहता है एज फॉर मी, लेकिन मेरे लिए, आई वॉज सो अस्टोनिश्ड, मैं पूरी तरीके से आश्चर्यचकित था, अचंभित था. दैट आई डिडंट एट फर्स्ट सी व्हाट वाज गोइंग ऑन बाय द ब्रुक, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था क्या हो रहा है आखिर ये ब्रुक जो हमारी मतलब ये घड़ी जो एक धारा थी, स्ट्रीम ऑफ वाटर था, उसके किनारे पे क्या हो जा रहा था. बट व्हेन आई डिड लुक देयर वाज ए सैड साइट, लेकिन जब मैं उधर देखा तो वहां पे एक बहुत ही बुरा दृश्य मैंने देखा. साइट मींस होता है दृश्य. देयर वाज ए सैड साइट, वहां पे एक बुरा दृश्य था. क्या था, 2 फाइन हॉर्सेस वर डाउन, 2 फाइन हॉर्सेस, 2 अच्छे घोड़े वहां पे गिरे हुए थे. One was struggling in the stream, एक घोड़ा उस स्ट्रीम में यानी उस धारा में स्ट्रगल कर रहा था. एंड द अदर वाज ग्रोनिंग ऑन द ग्रास, लेकिन जो दूसरा वाला था वो ग्रोनिंग कर रहा था, करा रहा था ग्रास में. ये कौन से 2 घोड़े थे जिससे वो शिकारी आए थे, 6 से 8 लोग आए थे. Yes, sir. One of the riders was getting out of the water, one of the riders was getting out of the water covered with the mud, जो घोड़े पे बैठा हुआ, जो चलाने वाला जो राइडर था, वो क्या कर रहा था, एक राइडर था, was getting out of the water covered, वो पानी से बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहा था. that was covered with the mud, जो कि कीचड़ से लदा हुआ था. the other lay quite still, और the other lay quite still, और एक दूसरा तो वहीं पे लेटा हुआ था. his neck is break, और his neck is broke, और उसका गला टूट गया था. सैड माई मदर, उसका मेरी माँ, तभी मेरी माँ बोलती है उसका गला टूट गया है. एंड सर्व हिम राइट टू, सैड वन ऑफ द कॉल्स, तभी जो हमारे जो और भी वन ऑफ द कॉल्स थे यानी और भी जो घोड़े थे वो बोलते हैं बहुत अच्छा हुआ उसके साथ.
एंड सर्व हिम राइट टू, उसके साथ सही हुआ। सर्व हिम राइट टू का मतलब उसके साथ सही हुआ। आई थॉट द सेम, मैंने भी बिल्कुल सेम ऐसे ही समझा। बट माई मदर डिड नॉट ज्वाइन विथ अस, लेकिन मेरी माँ हम लोग के साथ नहीं सहमति हुई, उन्होंने मेरे से नहीं ज्वाइन किया। वेल नो सैड, शी सैड, उन्होंने कहा वेल नहीं, अच्छा नहीं हुआ। यू मस्ट नॉट से दैट, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बट दो आई एम एन ओल्ड हॉर्स एंड हैव सीन एंड हर्ड अ ग्रेट डील, मैंने ऐसा, मैं जैसा कि मैं एक पुरानी घोड़ी हूं, आई हैव सीन एंड हर्ड अ ग्रेट डील, इस तरह की चीजें मैंने बहुत देखा है। आई नेवर एट कुड मेक आउट व्हाई मैन आर सो फाउंड ऑफ दिस स्पोर्ट, मैं कभी भी नहीं ये जान पाई, पता कर पाई कि व्हाई मैन आर सो फॉन्ड ऑफ इट, ऑफ दिस स्पोर्ट, जो आखिर आदमी जो है मैंने वो क्यों इतने फॉन्ड है, क्यों इतने इनके शौकीन है। फॉन्ड मतलब होता है शौक। व्हाई दे आर फॉन्ड ऑफ दिस काइंड ऑफ स्पोर्ट, वे इस तरह की स्पोर्ट्स के क्यों आखिर इतने फॉन्ड है। दे ऑफन हर्ट देमसेल्व्स, वे अक्सर वे अपने आप को हर्ट किया करते हैं। ऑफन स्पॉइल गुड हॉर्सेस, वो अच्छे घोड़ों को भी कई बार बर्बाद कर देते हैं, खराब कर देते हैं। एंड टीयर अप द फील्ड्स, और फील्ड्स को भी कहीं ना कहीं खराब कर देते हैं। एंड ऑल फॉर अ हेयर और अ फॉक्स और अ स्टैग, और ये सब किस लिए होता है। ऑल फॉर अ हेयर, सिर्फ एक हेयर के लिए, एक फॉक्स के लिए। एंड और अ स्टैग, क्या है, सिर्फ एक स्टैग के लिए, स्टैग होता है बियर, दैट दे कुड गेट मोर इजली, जो कि उन्हें बहुत ही आसानी से मिल सकता है। लेकिन वो इस तरह का स्पोर्ट्स क्यों पसंद करते हैं कि पकड़म पकड़ाई, मतलब शिकार के तौर पे उनको हासिल करना चाहते हैं, ये इस तरह का स्पोर्ट्स उन्हें क्यों आखिर पसंद है। सम अदर वे, अब यहाँ पे तो सम अदर वे, यहाँ पे दैट दे कुड गेट मोर इजिली सम अदर वे, जो कि उन्हें एक दूसरे तरीके से, अन्य तरीकों से बहुत ही आसानी से मिल सकता है, फिर भी वे इस तरह के स्पोर्ट्स के क्यों शौकीन है। बट वी आर ओनली हॉर्सेस एंड डोंट नो, लेकिन हम लोग सिर्फ एक हॉर्सेस हैं और हमें नहीं पता आखिर वे ऐसा क्यों करते हैं। उसकी माँ बोलती है ये सारी बातें। While my mother was saying this, we stood and looked on, जब मेरी माँ ऐसा बोल रही थी तब हम लोग खड़े हुए थे और उसकी तरफ देख रहे थे। Many of the riders had gone to the young man, कई सारे जो राइडर्स थे वे उस young man had gone to the young man, उस young man की तरफ गए। But my master, लेकिन जो मेरा मास्टर था, who had been watching what was going on, जो कि देख रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, was the first to raise him, पहला आदमी था जो उसको रेज किया, यानी उसको उठाने के लिए आगे बढ़ा। His head fell back and his arms hung down. His head fell back, और उसका जो हेड है वो पीछे की तरफ फेल हो गया, यानी गिर गया। And his arms hung down, और उसका जो आर्म था वो एक तरीके से पड़ा रह गया, हंग हो गया, यानी लटक गया। And everyone looked very serious, और ऐसे में क्या होता है, बाकी जो सभी लोग वहां पे थे वो बहुत ही सीरियस दिखने लगते हैं, बहुत ही सीरियस बहुत हो जाते हैं। There was no noise, बिल्कुल भी वहां पे आवाज नहीं था। There was no noise now, अब वहां पे बिल्कुल भी आवाज नहीं था। Even the dogs were quiet, लेकिन इवन जो डॉग्स थे वो भी शांत हो गए थे। And seemed to know the something was wrong, और उनको वो ऐसे दिख रहे थे कि जैसा कि जानते हो कि कुछ गलत हो गया, समथिंग वाज रॉन्ग। सीम्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो जानते रहे हों, टू नो दैट समथिंग वाज रॉन्ग, तो उनको पता था कि सब कुछ गलत हो गया। दे कैरिड हिम टू आवर मास्टर्स हाउस, वे इनको जो भी लटका हुआ था उसको मास्टर के हाउस, जो हमारे मास्टर थे उनके घर तक ले गए। आई हर्ड आफ्टरवर्ड, मैंने थोड़ी देर बाद में सुना, दैट इट वाज द यंग जॉर्ज जॉर्डन, ये तो जो यंग जॉर्ज जॉर्डन मतलब जो हमारे मास्टर थे, हमारा जो हॉर्स का जो ओनर था उसका बच्चा था, जॉर्ज जॉर्डन, द स्क्वायर्स ओनली सन, जो कि स्क्वायर्स का एकमात्र बच्चा था। अ फाइन टैल यंग मैन एंड द प्राइड ऑफ हिज फैमिली, एक फाइन, एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही लंबा यंग मैन, एंड द प्राइड ऑफ हिज फैमिली, और अपनी फैमिली का प्राइड था। ये इस हॉर्स के लिए बोल रहा है जो खत्म हो गया था एक तरीके से, जिसका नेक टूटा हुआ था। There was now riding off in all direction to the doctors. Now अभी क्या हुआ, अब इस समय सभी लोग एक तरफ हर डायरेक्शन में भागे। For the doctors, to the farriers, farriers होता है जो नाल बांधते हैं घोड़े के पैरों में शूज के लिए, उनको बोला जाता है। फेरियर के पास गए जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं। नो डाउट टू द स्क्वायर जॉर्डन टू लेट हिम नो अबाउट हिज सन, और नो डाउट ऐसा
जो लोग दौड़ते हैं स्क्वायर जॉर्डन को उसके सन के बारे में, उसके बच्चे के बारे में बताने के लिए भागते हैं। When मिस्टर बॉन्ड द फेरियर, और जब मिस्टर बॉन्ड जो है, जो कि फेरियर है, नाल बांधने वाले हैं, came to the look at the black horse, और जब वो ब्लैक हॉर्स को देखने आते हैं, that lay groaning on the grass, जो कि उस ग्रास में ले यानी पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, ग्रोनिंग, ग्रोनिंग मतलब कराह रहा था, उस ग्रास में लेट के कराह रहा था। He felt him all over and shook his head, वे उसकी तरफ गए और उसके सर को हिलाया, शुक किया, यानी शेक से शुक होता है, शेक का सेकंड फॉर्म है शुक, शेक मींस हिलाना, शुक मतलब हिलाया, तो उसके हेड को हिलाया। वन ऑफ हिज लेग वाज ब्रोकन, और फिर कहा उसका जो एक पैर है वो टूट गया है। देन समवन, तभी समवन रैन टू आवर मास्टर्स हाउस, हमारे मास्टर के घर की तरफ दौड़ा, एंड केम बैक विथ अ गन, और वापस आया एक गन के साथ। प्रेजेंटली देयर वाज अ लाउड बैंग एंड ए ड्रेडफुल श्रिक, तभी वो हमारे मास्टर के हाउस से एक गन के साथ वापस आया। प्रेजेंटली देयर वाज अ लाउड बैंग, और तभी उसी समय बहुत ही तेजी से, लाउड बहुत तेजी से, बहुत ऊंची शावर में एक बैंग यानी धमाका का आवाज होता है, एंड ड्रेडफुल श्रिंक, जो कि एंड देन ऑल वाज स्टिल, द ब्लैक हॉर्स मूव नो मोर, तभी सभी लोग खड़े रह जाते हैं, और एक तरीके से ड्रेडफुल श्रिंक यानी एक बहुत बुरी आवाज निकलती है बैंग की यानी धमाका की, और फिर कोई कहता है द ब्लैक हॉर्स मूव नो मोर, जो ब्लैक हॉर्स है वो बिल्कुल भी नहीं मूव करेगा, यानी वो उसे मार दिया जाता है, उसको मार देता है, यानी वो मर जाता है। माई मदर सीम्ड मच ट्रबल, जो मेरी माँ थी वो बहुत ही ज्यादा ट्रबल में दिख रही थी, बहुत ज्यादा परेशान दिख रही थी। शी सैड, उसने कहा, शी हैड नोन दैट हॉर्सेस फॉर इयर्स, वे इस हॉर्स को बहुत सालों से जानती थी, एंड दैट हिज नेम वाज रॉब रॉय, इसीलिए उसका नाम क्या था, रॉब रॉय था। ही वॉज अ गुड हॉर्स, वो बहुत अच्छा हॉर्स था। एंड देयर वाज नो वॉइस इन हिम, लेकिन अभी क्या, उसके अंदर कोई भी आवाज नहीं थी। शी नेवर वुड गो टू दैट पार्ट ऑफ द फील्ड आफ्टरवर्ड, अब वो कभी भी शायद उस फील्ड के उस पार अब कभी भी वो नहीं जा पाएगा। नॉट मेनी डेज आफ्टर वी हर्ड द चर्च बेल टोलिंग, नॉट मेनी डेज बहुत दिनों बाद, आफ्टर वी हर्ड, नॉट मेनी डेज यानी बहुत ज्यादा दिनों बाद नहीं, यानी जल्दी ही, we heard the church bell tolling for a long time, हमने सुना जो चर्च का बेल था वो टोलिंग कर रहा था, नहीं बज रहा था, for a long time, बहुत ही लंबे समय तक टोल बज रहा था। and looking over the gate we saw a long strange black coat that was covered with the black cloth and was drawn by the black horses, लंबा है थोड़ा, एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक फ्रेजेस पढ़ते हैं, एक एक क्लॉजेस पढ़ते हैं, फ्रेज नहीं। कहाँ पे हम लोग थे? एक मतलब जो चर्च की घंटी एक लंबे समय के लिए बजती है। एंड लुकिंग ओवर द गेट, तभी गेट की तरफ देखते हैं। वी सॉ अ लॉन्ग, हम क्या देखते हैं? अ लॉन्ग स्ट्रेंज ब्लैक कोच, एक बहुत ही अपरिचित से ब्लैक कोच को हम लोग देखते हैं लंबे से। दैट वाज कवर्ड विथ ब्लैक कोट, जो कि एक ब्लैक क्लोथ यानी काले कपड़ों से वो कवर्ड रहता है। एंड वाज ड्रॉन बाय ब्लैक हॉर्सेस, और जिसे ब्लैक हॉर्सेस के द्वारा लाया गया होता है। आफ्टर दैट came another and another and another and all were black, और उसके बाद भी बहुत लोग आए गए, एक के बाद एक आए, एक के बाद एक आए, एक के बाद एक आए, और सभी के सभी ब्लैक थे। while the bell kept tolling, जब जो while the bell kept tolling, जब जो बेल है वो टोल यानी बज रही थी, they were carrying young Jordan to the churchyard to bury him, वे लोग क्या करते हैं, उस जो यंग जॉर्डन था, जॉर्डन जो मर गया था गोली से, उसको चर्चयार्ड की तरफ ले जाते हैं टू बरी हिम। उसका बरी मींस क्या होता है? बरी मींस हम क्या कह सकते हैं? दफनाना।